So yesterday we were doing topic settlement, transport and communication, and today I'm going to start with merits of railways. तो merits of railways में हम सबसे पहले बताएंगे कि we can cover long distances in a comfortable way. या फिर आप कह सकते हो कि it's comfortable to travel long distances. ठीक, फिर आप कह सकते हो नेक्स्ट, इट इज यूजफुल टू कैरी हैवी गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ठीक है, इट कैन कैरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन अ वन टाइम. बस में तो इतने पैसेंजर बैठ नहीं सकते जितने ट्रेन में बैठ जाते हैं, है ना. इट कैन कैरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन अ वन टाइम. ठीक है ना, ये भी आप कह सकते हो. फिर आप कह सकते हो कि इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एंड देन फिर आप कह सकते हो वी कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद इन शॉर्ट टाइम. फॉर एग्जांपल दीज डेज, आपको ये बताना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल दीज डेज faster trains have been introduced. Now is it clear, students? Merits of railways, in book it's written only 2, but you will not do 2, you will write extra. It is the first of all, तो आप कहोगे it is comfortable to travel long distances. Then it is useful to carry heavy goods over long distances. You know ना, for example goods train पता है ना, goods train मालगाड़ी जिसे बोलते हैं. It is useful to carry heavy goods over long distances. For example goods train. ठीक है, साथ में बता दो for example goods train. फिर आप बताओगे it is useful to carry large number of people in a one time. Is it clear? It is the cheapest means of transport. मैंने मुझे लगता है 5-6 बोल दिए. फिर आप कहोगे it is useful to cover long distances within short time for these days with the help of faster trains. These days faster trains have been introduced. Is it clear? Merits of railways, can you write 5-6 points merits of railways. Okay. Write 5 points merits of railways. Now is it clear, students? Merits of railways. I'm going to repeat it again. Now listen again. First of all, you will write it is useful to cover long distances within short time, because these days fastest trains have been introduced. फिर it is comfortable to cover long distances. Comfortable है ना. फिर आप कहोगे it can carry large number of people over long distances in one time. It is useful to carry heavy goods over long distances. Example, goods train. It is the cheapest means of transport. So all these points you can write in merits of railways. Next is communication. What do you mean by communication? Sending and receiving messages. Sending and receiving messages is known as communication. Sending and receiving messages is known as communication. It is of 2 types. आप बता सकते हो personal and mass. Personal and mass. Personal you know it very well ना. लेटर, टेलीफोन, ये सब पर्सनल में आता है. ठीक है. मास में आप कह सकते हो रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, ये सब मास. Communication, sending and receiving messages. Sending and receiving messages is known as communication to family, friends and the people of the society. Sending and receiving messages is known as, the process of sending and receiving messages is known as communication. The process of sending and receiving messages is known as communication. It is of 2 types, personal communication, mass communication. तो आप अपने आप लिख सकते हो पर्सनल कौन सी है, मास कौन सी है. इज इट क्लियर? लिसन अगेन. द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज नोन एज communication. Is known as communication. It is of 2 types, personal and mass. Personal में आप बता सकते हो we can send messages to our friends, relatives, family members. ठीक है, living in any part of the world. और फिर mass में आप कह सकते हो by this we can send messages to large number of the people of the society. For example,
रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब मास कम्युनिकेशन है। नो इज इट क्लियर? पेपर में तो जरूरी थोड़ा आपको आपको कम्युनिकेशन ही आना है, आपको ऐसे भी आ सकता है डिफाइन मास कम्युनिकेशन, डिफाइन पर्सनल कम्युनिकेशन, राइट द टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारे टॉपिक आपको आने चाहिए, पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। नो इज इट क्लियर? Communication, the process of sending and receiving messages is known as communication. It is of two types, personal and mass. Personal में आप बताओगे by this we can send messages to our friends, relatives and family members. ठीक है, तो एग्जाम्पल आप बता दोगे टेलीफोन एंड साथ में आप बता सकते हो लेटर्स, मोबाइल फोन, जो भी टेलीफोन पे टेलीफोन नहीं लिखना तो मोबाइल फोन एंड लेटर्स। और इधर आप बताओगे मास कम्युनिकेशन में आप बताओगे बाय दिस वी कैन सेंड मैसेजेस टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू द सोसाइटी, फॉर एग्जांपल टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स। नो इज इट क्लियर? डिफाइन कम्युनिकेशन, टू टाइप्स भी आने चाहिए। नेक्स्ट, मास मीडिया, डिफाइन मास मीडिया। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने कहना है मीडियम, define mass media, medium of communication to the masses, medium of communication to the masses. Define mass media, medium of communication to the masses is known as mass communication. Was it clear? Medium of communication to the masses. Masses नहीं लिखना तो to the large number of people. Medium of communication to large number of people at same time is known as mass media. Is it clear? Medium of communication to large to masses, या फिर masses means large number of people of the society. Medium of communication to large number of the people of the society is known as mass media. अब mass media तो आपको पता ही है, टेलीविजन एंड रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर। सेम अभी आपने कम्युनिकेशन किया, मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन, सेम ही है बच्चे। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज मास मीडिया। एग्जाम्पल इज, आप कोई भी एग्जाम्पल बताओ, फिर आप ऐसे भी बता सकते हो इट कैन बी ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लिसन अगेन, मास मीडिया, मास मीडिया का आप बताओगे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू द मासेस। अगर मासेस वर्ड नहीं लिखना तो यू कैन राइट टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज मास मीडिया। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो तरह का है, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में आप एग्जाम्पल बताओगे newspapers, magazines. Example of print media is newspaper and magazines. Electronic media में आप example बताओगे radio and television. Now is it clear? Mass media, medium of communication to the large number of the people of the society is known as mass media. It is of two type, print media, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लिख दोगे रेडियो एंड टेलीविजन। आई थिंक नो इट्स क्लियर। एक बार मैं फिर बोलती हूँ, 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। अब कुछ क्वेश्चन हमने खुद बना देने हैं, वो भी मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। देन नेक्स्ट था हमारा सेटलमेंट्स। आई एम नॉट हैविंग बुक, आई थिंक दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। डिफाइन सेटलमेंट, ये भी आपको टू टाइप्स दोनों बतानी है। द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर हाउसेस इज नोन एज सेटलमेंट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, परमानेंट एंड टेम्परेरी। तो परमानेंट में आप अपनी एग्जांपल दे दोगे, वी लिव इन परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। या फिर आप ये भी बता, आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था रूरल एरियाज में लोगों के ऑक्यूपेशंस बताओ। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन नेक्स्ट। इन विच एक्टिविटीज पीपल ऑफ रूरल एरियाज आर एंगेज्ड। तो यू नो इट वेरी वेल, एग्रीकल्चर वहां पे मेन है, फिर कैटल रियरिंग यू कैन राइट, फॉरेस्ट्री एंड देन ट्रेडिंग,
You can write the activities that are performed by the people of the rural areas. Is it clear? According to your choice, you can write this question. Then is merits of railways we have discussed now. अभी किया मैंने. Merits of railways अगर आपको बताना है तो आप लिख सकते हो ना इसको. We can cover long distances within short time because these days fastest trains have been introduced. ये साथ में बताना है. Fastest trains आ चुकी हैं. फिर आपने बताना है it is comfortable to travel long distances, cheaper as compared to roadways. फिर आप ये भी बता सकते हो it can carry heavy goods over long distances. फिर आप कह सकते हो for example goods train आप बता सकते हो. फिर आप बता सकते हो it can carry large number of people to other parts of the country within short time. Within short time in a one time. It can carry to the people large number of people to other places in one time. तो ये सारे रेलवे के यूजेस हैं. अगर मैं आपसे पूछूं which is the most common means of transport तो आप कहोगे roadways. ठीक है, roadways because it provide door to door service. और क्या फायदे हैं roadways के? आप कहोगे कि यूजफुल इन नैरो मार्केट्स. फॉर एग्जाम्पल आप अपने जलंधर का ही ले लो ना, अटारी बाजार, माहिरा गेट. अगर इन एरियाज में जाना है तो रोड ट्रांसपोर्ट इज यूजफुल टू कैरी गुड्स टू नैरो मार्केट्स. नैरो मार्केट्स में गुड्स ले जाना इजी होता है थ्रू रोडवेज. इज इट क्लियर? तो इस वजह से आप रोडवेज के बारे में बताते हो कि ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अवेलेबल हर जगह अवेलेबल है. इज इट क्लियर? फिर आप बता सकते हो कि रोडवेज जो हैं ये नैरो मार्केट्स में भी यूजफुल होती हैं टू कैरी गुड्स. नेक्स्ट, अगर आपको पूछा जाए एडवांटेजेस ऑफ विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट इट्स एडवांटेजेस. फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू नो इट वेरी वेल, दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट. अब एयर ट्रांसपोर्ट के क्या फायदे हैं कि वी कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद इन फ्यू आवर्स और मिनट्स. आपको यहाँ पे बॉम्बे जाना है तो आपको घंटों नहीं सफर करना. फिर अगर आपको दूसरी कंट्री जाना है तो विद इन फ्यू आवर्स. इज इट क्लियर? इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वी कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. नो नीड टू राइट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. These are extra questions and you have to write according to your own way. अब गौरिश यहाँ से कनाडा बैठा हुआ है तो यहाँ पे क्लासेस लगा रहा है देखो. और विद इन फ्यू आवर्स दूसरी कंट्री जाना इज द एयर ट्रांसपोर्ट ही यूज होगी. इज इट क्लियर? इट इज यूजफुल टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद इन फ्यू आवर्स और मिनट्स. फिर आप कह सकते हो इट इज कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कंफर्टेबल है. नो डाउट इट्स एक्सपेंसिव. ये एक्सपेंसिव भी है, इसका एक ड्रॉबैक है. एक्सपेंसिव है क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्यूल, बट इट इज कंफर्टेबल. ठीक. देन आप कह सकते हो कि यूजफुल इन रिमोट एरियाज आल्सो. रिमोट एरियाज में भी ये यूजफुल होता है. फिर आप कह सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज इट इज यूजफुल टू सप्लाई गुड्स टू द पीपल. लोगों को सप्लाई करने में, गुड्स सप्लाई करने में, फॉर एग्जाम्पल फूड, मेडिसिन, जहाँ पे भी जो लोग जिन एरियाज में कोई भी जैसे कि फ्लड्स आ जाए किसी एरिया में तो थ्रू द हेल्प ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट फूड items or you can say कि medicines, clothes can be provided to the people in the areas where natural calamities occurred. तो इस वजह से आप एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में भी बता सकते हो. तो नेक्स्ट इज रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है. अब वाटर ट्रांसपोर्ट, which is the cheapest means of transport? So then you will write about water transport. Water transport is the cheapest means of transport. तो इसमें आप बता सकते हो कि it can carry heavy goods, bulky goods over long distances. It can carry heavy goods क्योंकि कार्गो शिप्स जो होते हैं, आप एग्जाम्पल जैसे आपने गुड्स ट्रेन एग्जाम्पल दी, हियर यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ कार्गो शिप्स. कार्गो CARGO, थ्रू कार्गो शिप्स heavy goods can be carried to, bulky goods can be carried to other countries. Is it clear? For example, you have written in railways goods train.
यहाँ पे आप कार्गो शिप्स कह सकते हो, ठीक। Listen again, water transport is the cheapest means of transport. It is useful to carry heavy goods over long distances. For example, cargo ships. फिर आप कह सकते हो कि it is useful to cover long distances. Long distances को cover करना होता है, but time consuming होता है ये, ठीक है। इसमें ये ड्रॉबैक है। चीपेस्ट है तो ड्रॉबैक क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है। एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट है तो ड्रॉबैक क्या है कि वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। बट हम यहाँ पे ड्रॉबैक नहीं ना बता रहे, हम तो वैसे ही बता रहे हैं। फिर आप कह सकते हो इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो तरह का है ना, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। अगर तो आपको अपनी कंट्री में जैसे एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे इनलैंड वाटरवे इंडिया का गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, आप कह सकते हो रिवर सिस्टम जो है वो इंडिया का मेन है, ठीक है। तो इस वजह से आप, एंड अगर हम इफ वी हैव टू गो टू अदर कंट्रीज थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट देन सी रूट्स, थ्रू सी रूट्स वी कैन गो। अगर हमने वाटर ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट किया है टू गो टू अदर कंट्रीज देन थ्रू सी रूट्स वी कैन गो, हम थ्रू सी रूट्स जाएंगे, ठीक है। रास्ते में ओशंस, ये ओशंस को कवर करेंगे ना। फिर अगर आपको अफ्रीका से अमेरिका जाना है वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, देन अटलांटिक ओशन को कवर करना है। आपको किस ओशन को क्रॉस करना है? अटलांटिक ओशन। तो ये सी रूट है, आपको पता है बिजिएस्ट सी रूट अटलांटिक को बोला गया। busiest sea route, Atlantic Ocean is the busiest sea route in the world. तो आपको इस वे से इसको लर्न करना है। लिसन अगेन, वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट। एक मिनट, जिस बच्चे को सारी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में लर्न हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में है क्या? सेटलमेंट। आपको सारी सेटलमेंट के बारे में अगर नॉलेज होगी कि सेटलमेंट होती क्या है, कितने तरह की है, अर्बन है, रूरल है, परमानेंट है, टेम्परेरी है, अगर आपको सब लर्न हो गया, देन टीचर ने बाहर से तो क्वेश्चन देना ही नहीं, इसी में से देना है ना। देन अगर आपको सेटलमेंट पूछा जाए कि कौन सी सेटलमेंट अब ओवर पॉपुलेटेड हो रही है, तो अर्बन और रूरल। अर्बन, रूरल एरियाज के लोग किधर माइग्रेट हो रहे हैं? अर्बन एरियाज में। व्हाई इन अर्बन एरियाज? बिकॉज ऑफ बेटर फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं। आप एक मिनट, आपको जलंधर ही देख लो, जलंधर में कितने हॉस्पिटल्स हैं, है ना। तो विलेजेस में ये फैसिलिटी तो नहीं ना होगी, साथ में जो विलेजेस हैं वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं होगी। जलंधर में कॉलेजेस हैं, अभी तो मैं जलंधर की बात कर रही हूँ, बड़ी बड़ी सिटीज की अगर हम बात करें तो वेरियस फैसिलिटीज आर अवेलेबल, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। सिटीज में पार्क है, तो ये लोग रूरल एरियाज के लोग, कहीं ना कहीं लिविंग स्टैंडर्ड्स आर हाई इन अर्बन एरियाज, तो पीपल प्रेफर टू लिव इन अर्बन एरियाज। कहीं ना कहीं रूरल एरियाज के लोग अब अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट होते जा रहे हैं, ठीक है। सेटलमेंट में तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट इज, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट आएगा ना, तो आपको सारी ट्रांसपोर्ट्स की नॉलेज है। फॉर एग्जांपल आपको रोडवेज आ जाए, रेलवेज आ जाए, तो आपको पता है इंडिया का रेलवे नेटवर्क एशिया में नंबर 1 है, यू नो इट वेरी वेल। इंडिया में रेलवे लेके कौन आए थे? ब्रिटिश, बट दिस इज नॉट गिवन इन द बुक एंड नॉट आस्क्ड इन द पेपर, बट आपको रेलवे के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, आपको रेलवे के मेरिट्स पता होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आ गया आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के कितने तरह की होती है? 2 टाइप्स, और उसके मेरिट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर आपको एयर ट्रांसपोर्ट के मेरिट्स पता होने चाहिए, और एक ड्रॉबैक है कि वो एक्सपेंसिव है, बट हम उसे ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे, उसका फ्यूल ही उसे कॉस्टली पड़ता है, तो दैट्स वाई। तो आपको वाटर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस। अब नेक्स्ट चलो, तो नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन आप कहते हो कि 2 तरह की है, पर्सनल एंड मास, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि पर्सनल में से विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो दैट इज मोबाइल फोन। पता है ना सबको मोबाइल फोन। अब एक मिनट, सावे ने गौरिश से बात करनी है तो सावे कैन टॉक विद इन 1 सेकेंड बाय मोबाइल फोन, ठीक है ना। तो विच इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? दैट इज मोबाइल। with mobile we can talk to our friends, relatives living in any part of the world within few seconds। आप इमीडिएट यहीं पे बैठे बैठे कॉल करो तो उससे बात कर सकते हो, ठीक है। तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस ही होंगे ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। तो फिर आपसे मास मीडिया के बारे में पूछा जा सकता है। मास मीडिया थ्रू बाय विच वी कैन कम्युनिकेट टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ द सोसाइटी। फिर आप इसमें बताओगे इट इज ऑफ 2 टाइप, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक। प्रिंट में सबको पता है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स,
एंड इलेक्ट्रॉनिक में आप सबको पता है दैट इज रेडियो एंड टेलीविजन. नो, इज इट क्लियर? अब इसके अलावा इस चैप्टर में बच्चे कोई क्वेश्चन नहीं है. अब ध्यान से सुनो, आपका ये जो सिलेबस है दैट इज कंप्लीटेड.